Hello students, today onwards once again we are going to start our online lectures and today we are going to learn a new topic that is from superlative degree to positive degree. How to convert the sentences from superlative degree to positive degree. First I have taught you two types. First is a positive to comparative and second one is a comparative to positive. I have told you the rules as well and we have solved many sentences. Homework also I had given and I'm looking that many students among you, they are doing good. They are showing me notebooks also. They are solving sentences also and this practice will really help you in future. So now we are going to learn superlative to positive degree. Okay. So let's start. Okay. Suppose this is the sentence. My father is the most loving person in my family. So this is the sentence of a superlative degree. How do we come to know this? From this word, most loving person. Means if it is a positive degree, it will be only loving person. If it is comparative degree, it will be more loving person. But it is the superlative. My father is the most loving person in my family. Now we are going to change it into positive. So you have to remember some rules. Getting some network issues, I think. Just a second, please. Hmm. Now, very first rule is that you have to begin your sentence with no other. Okay. Suppose this is the sentence and now I'm solving it. My father is the most loving person in my family. Begin with your sentence with no other. No other. No other. Okay. First rule. Okay. Begin your sentence with no other. Hmm? After that, whatever the sentence is there after adjective, loving is the adjective. Whatever the sentence is there after adjective, you have to write as it is. No other person in my family. No other person in my family. Okay. After that, you have to use helping verb. Is hoga, was hoga, whatever it may be, you have to write helping verb, auxiliary verb you have to write. Then you have to remove this, the most or est you have to remove and remaining adjective loving you have to take between as loving as ओके और जो शुरू का जो सब्जेक्ट है वो आपको लास्ट में लिखना पड़ता है माय फादर ओके तो कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं पहला रूल है आपका सेंटेंस नो अदर से शुरू करो उसके बाद एडजेक्टिव के बाद जितना सेंटेंस है वो लिखो हेल्पिंग वर्ब लिखो एज लविंग को एज में लिखो और माय फादर लास्ट में लिखो लास्ट में फुल स्टॉप आपको लिखने का देने का ओके आफ्टर दैट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड क्या करना है आपको बिगिन योर सेंटेंस विथ नो अदर नो अदर ओके अभी बेस्ट यहां पर क्या है सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको फ्रेंड लेने का है ना बेस्ट के बाद जो फ्रेंड है वो लेने का नो अदर फ्रेंड नो अदर फ्रेंड ओके अभी नो अदर फ्रेंड के बाद हम आर तो नहीं यूज कर सकते इज यूज करना पड़ेगा नो अदर फ्रेंड इज ओके अभी बेस्ट है गुड बेटर बेस्ट होता है तो हमको बेस्ट का क्या करना पड़ेगा गुड करना पड़ेगा नो अदर फ्रेंड इज उसको क्या किस में लेने का है एज गुड एज यू हो गए पॉजिटिव डिग्री
नो अदर फ्रेंड इज एज गुड एज यू. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. इंग्लिश इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अभी फिर से जैसे पहले दो सेंटेंसेस हमने सॉल्व किए, क्या करना है आपको? बिगिन योर सेंटेंस विद नो अदर. ओके. उसके बाद इसमें क्या कौन सा है? एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग के बाद क्या है? सब्जेक्ट है, तो नो अदर सब्जेक्ट जो है वो शुरू में है. नो अदर सब्जेक्ट. ओके. हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज. नो अदर सब्जेक्ट इज. द निकाल दो, मोस्ट निकाल दो, ईएसटी लगाए लास्ट में तो वो निकाल दो. नो अदर सब्जेक्ट इज एज इंटरेस्टिंग एज इंग्लिश. नो अदर सब्जेक्ट इज एज इंटरेस्टिंग एज इंग्लिश. ऐसे करना है आपको. वी वेर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन इंडिया. अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? नो अदर पीपल. नो अदर पीपल इन इंडिया. आई कैपिटल. नो अदर पीपल इन इंडिया was as hardworking as us. ऐसे करो. वी का क्या करना पड़ेगा? अस करना पड़ेगा लास्ट में. इट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव एवर फेस्ड. फिर से अपना रूल जो है, बिगिन योर सेंटेंस विथ नो अदर. नो अदर उसके बाद वर्स्ट एडजेक्टिव है ना, उसके बाद का पूरा सेंटेंस लिख दो. नो अदर प्रॉब्लम आई हैव एवर फेस्ड. नो अदर प्रॉब्लम आई हैव एवर फेस्ड. ओके. हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके बाद? इज. नो अदर प्रॉब्लम आई हैव एवर फेस्ड इज एज. अभी वर्स्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या है? गुड, बैड है. एज बैड as it. At the most, at last, stop. So this is how you have to make superlative to positive. Write down these all sentences. After that, you have to write the rules. कैसे सॉल्व करने का है? पहला रूल है बिगिन द सेंटेंस विथ नो अदर. आपको नो अदर से शुरुआत करनी है. उसके बाद राइट द कंप्लीट सेंटेंस आफ्टर द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बाद जितना सेंटेंस है उतना पूरा लिख लो. यूज द हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो. एम इज आर वाज वेयर जो कुछ भी है वो आपको लिखना पड़ेगा. हैव हैज हैड. रिमूव द मोस्ट. ये जो सुपरलेटिव का कंस्ट्रक्शन है द मोस्ट या फिर ईएसटी उसको निकाल दो. वो निकालने के बाद आपको जो रिमेनिंग एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री में वो आपको क्या करना है? एज में यूज करना है. यूज द रिमेनिंग एडजेक्टिव इन एज. और लास्ट में क्या करना है? टेक सब्जेक्ट एट द एंड फॉलोइंग विद द फुल स्टॉप. लास्ट में आपको सब्जेक्ट लेकर फुल स्टॉप देना है. दिस इज द वे टू मेक superlative to positive. Now, already we have solved 5 sentences. Now we have to solve the 6th number sentence. He was the richest man in the company. Now, how will you make it? पहले आपको शुरू करना है नो अदर से शुरू करना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है? बिगिन योर सेंटेंस विद नो अदर. हेल्पिंग अभी उसके बाद क्या करना है? रिचेस्ट जो एडजेक्टिव उसके बाद का पूरा सेंटेंस लिख लो. नो अदर मैन इन द कंपनी. इन द कंपनी was एज. द निकाल दो, रिचेस्ट का ईएसटी निकाल दो, और जो रीच है उसे एज में लिखो. एज रीच एज
ही का क्या करो, हिम करो, लास्ट में फुल स्टॉप देना है। नो अदर मैन इन द कंपनी वॉज एज रिच एज हिम। शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑन ऑफ आवर क्लास। ऑन आवर क्लास हुआ यहाँ पर, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ आवर क्लास। शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो क्या करना पड़ेगा, बिगिन योर सेंटेंस विथ नो अदर। नो अदर, ओके। नो अदर, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट। नो अदर स्टूडेंट of her class. No other student of her class, of her class is, helping verb is लेना है, as smart as she, as her करो, she का her करना पड़ेगा लास्ट में। Now next, Mercury is the nearest planet to the sun. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन बिगिन योर सेंटेंस विथ नो अदर। नो अदर प्लैनेट is, नो अदर प्लैनेट, प्लैनेट, मुझे लगता है यहाँ पर सेंटेंस गलत हो गया है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ऐसे चाहिए ना, नहीं सन ही करेक्ट है। नो अदर प्लैनेट टू द सन, टू द सन इज एज नियर एज, नियरेस्ट का क्या करना पड़ेगा, एज नियर एज मर्क्यूरी, एट दैट फुल स्टॉप। तो आपको कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, बिगिन योर सेंटेंस विद कैपिटल, एट द एंड फुल स्टॉप चाहिए, जहां पर कैपिटल स्मॉल है आपको देख लेना है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको मालूम हो गया है सबको, नो अदर प्लैनेट, नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एज हॉट एज, हॉटेस्ट का क्या करना पड़ेगा, एज हॉट एज वीनस। इसमें सो एज या फिर एज का कुछ कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर सभी तरफ आपको एज ही ऐड करना है, हाँ? नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अभी क्या करना पड़ेगा इसका, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज एज लॉन्ग एज नाइल, स्टॉप। So this is the way of solving from or transforming superlative degree to positive degree. अभी आपको होमवर्क है, ये सारे सेंटेंसेस आपको लिखने हैं नोटबुक में, ये लास्ट का आपका होमवर्क है। यू हैव 10 sentences to solve. We are the best swimmers in the town. He was the most effective shooter of the squad. He is the most handsome Hollywood actor, है ना। तो ये 10 सेंटेंसेस आपको, जैसे मैंने रूल आपको बताया उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट निकालकर आपको नोटबुक में लिखकर मुझे चेक करने को देना है। और दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अभी हमारे 3 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, पहला हो गया पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, दूसरा हो गया कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, और तीसरा है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अभी जो आपको वीडियोस देखने हैं, कुछ कुछ जो है बीच में ही ज्वाइन हो रहे हैं, पहले के वीडियोस नहीं है, तो सीक्वेंसली सारे वीडियोस आप देख लो, ओके। जब आप सीक्वेंसली सारे वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें और समझ में आएगा। यदि डायरेक्टली आप इसमें
जाकर यदि देख रहे हो तो शायद से आपको समझ में नहीं आएगी कुछ चीजें, क्योंकि बेसिक्स पहले लिया है। डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपेरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, जैसे हॉट हॉटर हॉटेस्ट है, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट है, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये सब पहले के वीडियोस में मैंने बताए। तो जब आप सीक्वेंसली देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइप्स आपने लिख लिए, कुछ टाइप्स आपको समझ में आए, कुछ टाइप्स आपको समझ में नहीं आए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एनीथिंग कैन बी देयर इन एग्जाम। तो ये सारे जो है, अभी 5 टाइप्स है ये सारे। अभी मैंने 3 टाइप्स आपको पढ़ा दिए, और कितने बाकी है, 2 टाइप्स बाकी है। वो कल और परसों के सेशन में आपको मिलेंगे। और सबको कंपल्सरीली आपको नोटबुक में लिखना है। अब ये जो सारे स्टूडेंट्स है, ये सबके लिए फायदेमंद हो, इसलिए मैं ये आपको भेज रहा हूँ। इट इज एक्चुअली कुछ इसमें ट्रबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कियोस नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, विल स्टॉप हियर ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।